the analysis and the all the knowledge you gave to students, like all the Hmm. chart techniques or the Excel parts, it is good. Hmm. Overall classes content was good. वैल्यू एट रिस्क का आपने वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का बड़ा अच्छे से समझाया था, तो आज भी मेरे को ग्राफ वगैरह याद है, आपने एक्सेल वगैरह पे बना के दिखाया था कि ऐसे Correct. ऐसे नॉर्मल नॉर्मल Correct. डिस्ट्रीब्यूशन है। तो Correct. या Hello, dear students. A very warm welcome to Noor Singla, who's AR1 in CA final May 26 exams. And he is a student of OneFin. He had taken OneFin's classes for AFM, where he scored exceptional marks, 83, right? यस सर। Where he scored 83 marks in the toughest paper ever. In fact, I went on record immediately after the exams. Quite a few people also have said, all the students have said, sir, ye kya paper hai? So in that paper, he scored 83. It's a stupendous achievement. Hearty congratulations, Noor. And, it's a phenomenal achievement. थैंक यू सो मच सर। Mm. So, Noor, in the last, I think, day or two, you have been only meeting a lot of politicians, right? काफी political trip एग्जैक्टली चल रहा सर। है आपका। यस सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, चलिए, और अगले 3-4 दिन में भी और पॉलिटिकल मीटिंग होंगे अभी। यस सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद, आई हैव bunch of questions which quite a few students have sent me, and some which I myself have, because after seeing the question paper, no, I was also actually very worried कि ये क्या question paper है and all. Specifically, I'm focused on AFM. Okay, we will ask questions on other topics also, other subjects also. But first, let us start with AFM because I am the AFM teacher and you scored excellent marks in AFM, right? So, first question is the paper was super tough, boss. Everybody agrees, right? आपने you scored 83. What is your personal opinion of that paper? मतलब, what do you think is, ignore what ICA has done. Okay, whether they should say it, should not say it is a different story. I'm asking as a student, when you looked at the question paper, what was your initial reaction? When you were solving it, what was the issue? When by the time you ended the paper, how was your frame of mind? Just take us through the question paper, please, once. तो सर जैसे कि जो इट्स टू की जो May 26 का पेपर है वो एक आउट ऑफ द बॉक्स पेपर था। तो बिफोर द पेपर आई हैड परसेप्शन दैट Jan 26 एग्जाम वाज डिसेंट, तो मे बी May 26 विल बी मैनेजेबल पेपर एंड इट विल बी स्कोरिंग। तो मेरे माइंड में तो ये परसेप्शन Mm, था कि ऐसा होगा। बट जब मेरे पास रीडिंग mm, टाइम में पेपर आया तो आई वाज लाइक कि ये क्या आ गया है। तो आई स्टार्टेड रीडिंग द पेपर फ्रॉम द लास्ट। तो लास्ट का जो ब्लैक शॉल्स वाला क्वेश्चन mm, था, तो आई स्टार्टेड विद दैट कि उसको मैंने रीड किया तो मेरे को लगा कि हाँ आई कैन अटेम्प्ट दैट। जब मैंने क्वेश्चन 5B पढ़ा mm, तो इट वाज फ्रॉम 4x। तो mm, वो 4x की थ्योरीज में से क्वेश्चन mm. उन्होंने प्रैक्टिकल पूछ लिया था। तो आई वाज लाइक कि मेरे को तो ये Correct. बिल्कुल नहीं आया। तो एक टाइम पे आई गॉट पैनिक्ड। Mm, तो मैंने mm, फिर 2-3 मिनट लिए और आई आई हैड वाटर। तो मैंने अपने आप को काम डाउन mm. किया और बोला कि पेपर मुश्किल आया ठीक है, बट इट इज डिफिकल्ट फॉर Mm. एवरीवन। तो आई काम माई Correct. सेल्फ एंड टोल्ड मी दैट आई विल गिव माई 100%, रेस्ट गॉड विल सी what all Correct. efforts I have put for last 7 to 8 months for this paper, I will do by 100%. Correct. So I Very good. started the Very good. paper like this. Mm. So even All India first rankers also get tensed. Yes, sir. We are also humans. Correct. 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 Exactly. But you had not seen any paper like this in your inter, right? You got AR2 in inter. यस सर। तो सर तब इंटर में पेपर ऐसा ऐसा था। नहीं था. नो सर, इंटर में ऐसा कोई पेपर मेरे को लगा नहीं था, या फॉर कॉस्टिंग ऑल्सो इन इंटर इट वाज लाइक डिफिकल्ट पेपर, बट फॉर मी इट वाज ओके। बट इन फाइनल एएफएम वाज ऑन अनदर लेवल ओनली। आई वाज नॉट थिंकिंग कि एएफएम को इतना मुश्किल बना देंगे इस बार ये। But even IBS also was slightly tricky, right? सर आईबीएस का फॉर मी इट वाज नॉट ट्रिकी, मैंने उसके लिए बहुत प्रैक्टिस किया था, तो इट वाज मैनेजेबल फॉर मी। Okay. Okay. But any other out of the six papers you found audit or anything slightly more tricky than usual and all that? नो सर, एएफएम वाज द ओनली पेपर वेयर आई थिंक कि उन्होंने बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया इस बार। Correct. तो एफएम पेपर लिखने के बाद, घर आने के बाद, डिड यू फील कि अभी ऑडिट पे चालू करना है, नहीं करना है, अभी क्या हो गया, ये व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या चल रहा है, वाज इट, हाउ वाज योर फ्रेम ऑफ माइंड आफ्टर राइटिंग द एफएम पेपर? तो सर जैसे 5 PM पे जब मैं एग्जाम हॉल से बाहर आया तो मेरे को एक ही कॉन्फिडेंस था कि आई हैव गिवन माई 100%। ऐसा है कि मैं हम्म. जितना प्रिपरेशन किया है मैंने अपने आप से अपना 100% कर दिया। अगर मैं और प्रिपरेशन करता तो इससे बढ़िया तो नहीं हो पाता। जितना आई कैन डू दैट मैंने सब कर लिया है।
तो ओके, वेरी इसी इसी माइंडसेट से मैंने ऑडिट में शिफ्ट किया, बिकॉज अगर 10 to 15 मार्क्स का शॉर्टफॉल हो रहा है मेरा एएफएम में, दैट आई कैन गुड। कवर फ्रॉम द ऑडिट। तो उस माइंडसेट करेक्ट। से मैंने अपना ऑडिट पे शिफ्ट कर लिया था। एंड सो यू वर नॉट वरीड, यू वर नॉट थिंकिंग कि अरे ये क्या पेपर हो गया है, यूट्यूब में जाओ, सोशल मीडिया में जाओ, क्या आंसर है, चेक करेंगे, वो सब नहीं चल रहा था? नहीं सर, वो वैसा मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सोचा कि अब ऑडिट पे फोकस करते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, दैट इज व्हाट वी वर टेलिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। नाउ इन दिस क्वेश्चन पेपर, राइट, आई मीन हाउ मच डिड यू अटेम्प्ट इन दिस क्वेश्चन पेपर, हाउ मेनी मार्क्स डिड यू अटेम्प्ट? सर मैंने ऑलमोस्ट 95 96 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था टोटल में। एंड जो भी छोटा मोटा आपने छोड़ दिया, दैट वाज अ थियरी क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन? सर एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे पास 5 मिनट्स रह गए थे और मेरे पास 2 क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट थे। तो एक क्वेश्चन का अच्छा। तो मैंने पूरा से अटेम्प्ट कर दिया, और एक क्वेश्चन था हम्म, म्यूचुअल फंड्स का जिसमें ग्रोथ रेट वगैरह निकालना था। तो व्हाट हाँ, आई डिड हाँ, कि मैंने फॉर्मूले वगैरह लिख दिए थे, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसके कैलकुलेटर पे आंसर निकाल के लिख दूं। तो दैट्स अच्छा। व्हाई आई अटेम्प्टेड 95 96 मार्क्स। ओके, सो यू बट थियरी कुछ नहीं छोड़ा था आपने, व्हाट यू लेफ्ट वाज ओनली प्रैक्टिकल क्वेश्चन? हाँ जी सर, थ्योरी मेरा थोड़ा स्ट्रांग था, दैट्स व्हाई थ्योरी मैंने अपना 100% कवर किया। Correct. So this is what very important. Even though AFM is a practical paper, theory is the जो आपको नैया पार करा देगी ना. It'll एग्जैक्टली help you cross the bridge. Correct. 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 So I actually want to discuss this. So you have these five. I mean, I'll go through briefly the questions. So if you look at the MCQs ना, पहले वो sovereign gold bond का था, वो ठीक ठाक था. That was an issue for you, or that was not an issue, right? For most of us, आई I mean, when I गेस looked at it also, the tax डाल दिया है, ठीक है, but it was not an issue, correct? I guess we are CA final students and we are going to become chartered accountants. So I guess it was a very easy question for me. ठीक है, बढ़िया. देन नेक्स्ट आया था रियल ऑप्शंस का क्वेश्चन. Yeah, वो so कैसा? दैट वाज आल्सो ओके? I guess it was copy paste from the study material only. So I करेक्ट. guess it is also manageable. ओके, फिर आया था वो एम एंड ए डिफेंस का पॉइजन पिल, वो सब, ग्रीन Sir, मेल, ब्लैक मेल. sir वो नहीं आता था सर मेरे को, to be honest. अच्छा. ओके, इज इट ओके, ठीक है. देन वीएआर का क्वेश्चन आया था, दैट वीएआर में व्हाट इज द, यू नो, कुछ अलग ही पूछा था उन्होंने कभी. आई मीन दे हैड नेवर आस्क्ड एनी क्वेश्चन लाइक दैट विद रिस्पेक्ट टू वीएआर, वेयर दे सेड क्या था, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट क्या है? हाउ डिड यू थिंक अबाउट दैट? तो सर इस क्वेश्चन में ऐसे हुआ था कि जब मैं सॉल्व कर रहा था ना, तो मेरे से ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, तो मेरा कोई भी आंसर मैच नहीं हो रहा था इसमें। तो आई आई टुक चांस, जब मेरे लास्ट के 15 मिनट्स रह गए थे, तो मैंने जो भी मेरे आंसर से मैच कर रहा था, तो वो मैंने आंसर टिक कर दिया। बट ओके. थैंकफुली वो मेरा आंसर सही था, बिकॉज मैंने सिर्फ ओके. स्क्वायर रूट करना भूल रहा था मैं अच्छा. कैलकुलेटर पे। ओके. ओके, ठीक है. देन लास्ट वाला वो फॉरेक्स था. फॉरेक्स तो मुझे तो देख के बहुत बुरा लगा यार. आई मीन दिस दे शुड नॉट हैव आस्क्ड सच अ बैड क्वेश्चन. इट इज, आई मीन, आई एम नॉट पुटिंग वर्ड्स इन योर माउथ, बट मुझे बहुत बुरा लगा वो क्वेश्चन देख के. व्हाट डिड यू फील व्हेन यू लुक्ड एट दैट क्वेश्चन? सर उसमें ऐसा था कि आई इन्वेस्टेड अराउंड 10 to 15 मिनट्स एंड आई सॉल्व दैट क्वेश्चन। अच्छा, यू गॉट द आंसर. यस सर। ठीक है, वेरी. बट 15 10 15 मिनट गए हैं उसमें, मतलब 6 मार्क के लिए यस 10 मिनट गए. करेक्ट. ओके, ठीक है. चलिए, उसके बाद आते हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो था भारत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, विच वाज अ क्वेश्चन ऑन स्वैप. वो दैट वाज ओके फॉर यू, दैट वाज नॉट मच ऑफ एन इशू? Yes, sir. I attempted that question. I guess it took me around 5 to 10 minutes. It was easy question for me because I have practiced a lot around SWAPs. ओके. फिर आया एच मॉडल. तो मैंने एक्चुअली क्लास में एच मॉडल कराया था क्वेश्चंस, आई डोंट नो वेदर यू रिकलेक्ट और नॉट. एक्चुअली सर क्लास में तो हमने एच मॉडल किया था, बट रिवीजन में मैंने ना एक लॉन्ग मेथड से सॉल्व किए थे क्वेश्चंस। तो एच अच्छा. मॉडल का मेरे को आइडिया नहीं था फॉर्मूला वगैरह का। तो मेरे को बाद हम्म. में पता लगा कि उन्होंने स्पेसिफिकली एच मॉडल से ही आंसर मांगा था। तो अच्छा. आई सॉल्व इट इन लॉन्ग मेथड। नॉर्मल. अच्छा. बट आई हैड डन 1 or 2 क्वेश्चंस, आई रिमेम्बर यस। एच मॉडल पे क्लास पे मैंने किया था. ठीक है, बढ़िया. देन उसके बाद आते हैं, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है ये, थियरी क्वेश्चन है. आई विल नॉट गेट डीप इनटू थियरी. वो ये आर्बिट्राज प्राइसिंग थियरी का एक क्वेश्चन था, अल्फा बीटा वाला, दैट वाज आल्सो मस्ट बी ओके ओनली, नो? वो दैट शुड नॉट हैव बीन मच ऑफ एन इश्यू फॉर यू. यस सर, मैं आर्बिट्राज पेपर प्राइसिंग थियरी स्टार्ट का बीटा वन. यस सर, स्टार्ट मैंने यहीं से किया था क्वेश्चन नंबर 2A से, बिकॉज मेरे को ये थोड़ा सही लग रहा था और मेरा पहली बार में आंसर निकल गया था इसका। ओके, सो एक और क्वेश्चन डाउट है. सो डिड यू राइट क्वेश्चंस हैपेसैडली, मतलब 2A 3B 4C 5A ऐसे लिखा था आपने, फिर या फिर 2A 2B 2C 3A 3B 3C, हाउ डिड यू राइट? तो सर ऐसा है, जो हमारा रीडिंग टाइम होता है ना,
तो उसमें हम्म, मैंने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक मैंने स्क्रीन आउट कर लिए थे, कौन से क्वेश्चन आई विल बी हम्म, स्टार्टिंग फर्स्ट। हम्म, तो हम्म, एमसीक्यूज वगैरह एंड क्वेश्चन नंबर 1 है, वो तो हमें 100% करने होता है, तो आई थिंक हमें हम्म, रीडिंग टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना। तो आई हम्म, स्क्रीन आउट ऑल द क्वेश्चंस एंड आई स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 2A। तो मैंने ऐसे किया था, हम्म, जैसे मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 का 2A और 2C अच्छे से आता था, बट 2B नहीं हम्म, आता था। तो हम्म, मैंने 2-3 पेज उसके छोड़ के मैंने अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2C स्टार्ट किया। तो आई वांट कि मैं हम्म, सीक्वेंस मेंटेन रखूं, बिकॉज जो चेकर वगैरह है अच्छा, उसको दिक्कत ना आए। करेक्ट, ओके, ठीक है, गुड। इवन इफ यू डोंट मेंटेन आल्सो दे विल अलॉट मार्क्स, तो उसको थोड़ा एफर्ट मारना पड़ता है, बट दैट इज नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। फिर वो 2B में ऑप्शंस का था, वो इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन। सर इसमें ऐसा था कि मेरे को इसमें से सेकंड पार्ट आता था, फर्स्ट पार्ट मेरे को थोड़ा डाइसी था कि उसका बाइफरकेशन कैसे होगा। तो दैट्स व्हाई आई अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन इन लास्ट 1 आवर। तो मेरे को जो समझ आया आई डिड दैट। Okay. So because in fact I had done this in the class, explained the full thing, what is intrinsic value, that the entire thing I had actually done it in the class. Then we come to the next question, which is VC funding का, there was some theory question that was easy. I don't think उसमें कुछ दिक्कत नहीं था. हाँ, अब आते हैं इसमें this 3A, which is a APV method, no, adjusted present value. आपने किया था ये question? नहीं किया था. सर मेरे पास एक्चुअली ये मैंने पहले स्टार्टिंग में नहीं किया, ये मैंने एंड में किया था, जब मेरे पास अराउंड 1 आवर रह गया था तो उसमें हम्म, किया था। तो मेरे को जो समझ आया मैंने वो कर दिया, बिकॉज मेरे को इसका एग्जैक्ट आंसर मेरे को नहीं पता था कैसे होगा। This was a very, I mean, even when I looked at suggested answer, I mean, 3, 4 days ago when suggested answers came out, I also was going to the solution. I mean, I found it very, it was very complicated to ask such a kind of a question, having never asked earlier in the exam. And पहले इसमें, they've asked a very, very twisted kind of question. मुझे भी बहुत, I found it very difficult. I'm sure students would have found it very difficult in the exam hall. पूरे सर पे बाउंसर चल रहे होंगे. एग्जैक्टली सर, ये क्वेश्चन देख के सर ऐसा हो गया था कि फॉरेक्स तो थोड़ा स्ट्रांग था मेरा, कि उसमें से इतने नंबर का तो आता ही है, एटलीस्ट 10 to 15 मार्क्स का वो स्कोरिंग हो सकता है, बट उन्होंने उसी में खेल लिया। करेक्ट। फिर दूसरा है वो म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन, विच इज द ओवरऑल रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? दैट यू फाउंड इट इजी और दैट वाज नॉट मच ऑफ दिस थिंग? आई गेस इट वाज मैनेजेबल। इट वाज मैनेजेबल, ठीक है। या फिर आते हैं वो पोर्टफोलियो, आप शार्प्स ऑप्टिमल पोर्टफोलियो 4 है, आपने अटेम्प्ट किया था या छोड़ दिया था ऑप्शन में? नहीं सर, मेरे को जब Jan 26 में इन्होंने पूछ लिया था ना ये शार्प ऑप्टिमाइजेशन, तो मेरे को ऐसा होता कि हम कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं है दैट वी कैन लेफ्ट, तो आई डिड करेक्ट, 100% सिलेबस, तो मेरे को ये क्वेश्चन आता था, तो मैंने ये सेकंड नंबर पे यही क्वेश्चन सॉल्व किया था। करेक्ट। सो इनफैक्ट आई हैड सॉल्व 2, 3 क्वेश्चंस इन क्लास ऑन दिस। यस सर। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने क्रिएट करवा के ऐड एडेड इट। फिर आते हैं नेक्स्ट वन, एनएवी परफॉर्मेंस। लॉट ऑफ पीपल, स्टूडेंट्स गॉट दिस डाउट कि वो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, राइट? यू हैड एनी कंसर्न कि ज्योमेट्रिक मीन नंबर क्या है, इज इट सीएजीआर, नॉट सीएजीआर? डिड यू हैव एनी सच डाउट? सर मेरे को हुआ क्या, जब मैंने ये पहले क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे को क्लिक नहीं किया, बट जैसे मैंने बोला ना कि लास्ट के 5 मिनट्स में मेरे पास 2 क्वेश्चन थे, तो दो में हाँ, से एक क्वेश्चन ये था, तो इसका मैं फॉर्मूला अच्छा, लिख के आ गया था, बट सॉल्व नहीं कर पाया, बट मेरे को ज्योमेट्रिक ओके, मीन क्लिक कर गया था कि लास्ट टाइम पे क्या होगा। ओके, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। फिर आते हैं वो अपना ये क्वेश्चन ना, द फ्लोटिंग रेट लोन, फ्लोर का प्राइसिंग, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द फ्लोर, ये भी सॉल्व किया था आपने या फिर थियरी लिख दिया था एलियट वेव का? सर मैंने इसका थ्योरी लिख दिया था, बिकॉज मैं थ्योरी अच्छे से करके गया था, तो चार्ट्स करेक्ट, वगैरह बना के मैं थ्योरी लिख के आया इसकी। बढ़िया, बहुत आपने, अच्छा आपने चार्ट भी ड्रॉ किया इसका? यस सर। वेरी गुड यार, सॉलिड। ठीक है। फिर क्वेश्चन 5, तो आपका ऑप्शनल क्वेश्चन कौन सा था, 5 या 6? सर मैंने क्वेश्चन 5 छोड़ा था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्वेश्चन 5, तो यू डिडंट ऑब्वियसली गो थ्रू दिस 5A, व्हिच इज FCFF एंड ऑल ऑफ दैट, FCFE एंड ऑल ऑफ दैट। फिर 5B था रेट सेंसिटिव एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो ये तो देख के बहुत बहुत बुरा लगा होगा ना। आई मीन इट्स ए छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, somewhere in between. I had taught in the class, but even I didn't expect that they will create a question out of theory topic. एग्जैक्टली सर, तो 5B को ही देख के मैंने ये 5 क्वेश्चन पर 5 छोड़ने का अच्छा, डिसीजन लिया। ओके, ठीक है। देन आते हैं लास्ट वाला 6, विच इज वन इज योर एमएनडे वाला क्वेश्चन। सो एमएनडे क्वेश्चन इज दैट, एंड उसके बाद था 6B इज योर दिस वन, कौन सा आपका, ब्लैक सोल्स, ब्लैक ब्लैक सोल्स, सॉल्स। यू न्यू द फॉर्मूला ना? यस सर। So we had actually solved. I had solved in the class for quite a few questions, and I don't know if you saw my video, but after the Jan 26 exams, everybody was clear कि बॉस कुछ छोड़ने का नहीं है. Any question can come in the exam, so please prepare for this and go करके काफी लोगों ने बोला, मैंने भी बोला था, काफी लोगों ने बोला, and I'm sure you also would have realized, आपने अभी बोला था ना कि we knew that no concept is can be left out. यस सर। करेक्ट,
ठीक है. Okay, brilliant. So we've gone through the question paper. I'm, very interesting to see how you have approached. So you tell me, when did you clear your CA Inter? Sir, I cleared in May 23. So May 23, and you took our classes sometime in August, September, है ना? Yes, sir. तो आपने पहले किससे चालू किया था, FR या AFM? So, sir, actually, I started my articleship with KPMG in August 23. So, I took हम्म. AFM classes first in September because हम्म. since I was new to the industry and I was not aware of practical things, तो मेरे हम्म. मेरे पे इतना काम का लोड नहीं था. तो that's what I thought कि अभी के लिए क्लासेस पे फोकस करते हैं because in March April there will be hectic season for audits. तो मैंने Correct, फर्स्ट 6 months correct. में AFM और FR का स्टार्ट कर दिया था. अच्छा, and when did you finish both of these, FR, AFM? Sir, I completed AFM around in December 2023 and FR अच्छा, in March to 4 महीने. 2024. Yeah. अच्छा, 7 महीने में दोनों खत्म. Yes, sir. अब ब्रिलियंट, ब्रिलियंट. देन हाउ डिड यू गो अबाउट अदर सब्जेक्ट्स? फिर कौन सा सब्जेक्ट चुना था आपने इस दोनों के बाद? So, sir, after that I started with audit. मैंने audit अप्रैल 2024 से लेके सितंबर 2024 तक I did audit because उसमें ऐसा था कि I got outstation audit, so मेरे को स्टडीज का बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, तो मैंने ऑडिट किया था तब. ओके, ओके. एंड उसके बाद यू वेंट टू DT और IDT, और क्या किया था उसके बाद? यू After टुक that DT in IDT ओनली इन द लास्ट. So I did the in October to December. I attempted for the self-paced modules for the law and अच्छा, cost. करेक्ट. And after that, in February 2025, I started the IDT classes. अच्छा, ओके. एंड तो आपके कितने दिन, you guys are the new scheme, right? So you have that Yes, 6 months, 6 to 8 months off. आपके yes, कितने sir. महीने की छुट्टी थी? Sir, I completed my articleship in August 2025, and after that, I did 1 or 2 months the training of the ICI, and हम्म. after that, I had around 6 to 7 months for the study leaves. बढ़िया, बढ़िया. So, and in study leaves, so after you left off FRAFM in 23, 24, early 24, बाद में you again touched the books only in 25 Sir, I had some after lean study. period in around December 2024 and January 2025. I started with FR, like I did हम्म. some India's revisions so that ऐसा ना हो कि जब मैं स्टडी लीव्स में जा रहा हूँ तो मेरे को FR बिल्कुल ही भूल गया. तो थोड़ा थोड़ा बीच में जब मेरे को टाइम लगा, जब देयर वाज लीन पीरियड फॉर ऑडिट, आई डिड सम रिविजन्स. Okay. But by the time your review exam leave started, you had finished all subjects preparation? Sir, I complete DT in I started DT classes after my articleship because Hmm. it was new assessment year, तो Correct, मैंने सोचा correct. कि लास्ट Hmm. में करने का फायदा है, तो DT का Hmm. मैंने लास्ट में किया था आफ्टर माय But आर्टिकलशिप. but IDT and all other three subjects and IBS में preparation कब किया था आपने फिर? वो भी जो सर exam आई leave होता है. सर IBS का ऐसा, जैसे मेरा एग्जाम था May 26 में, तो आई स्टार्टेड विद IBS इन जनवरी 2026. Acha. So two subjects you left to the end, which is your TT, which is sometime in August, September of 25, and your IDT is in your IBS, which you started in Jan 26. यस सर. Acha, बढ़िया, बढ़िया. Okay, good, good. But you finished main 4 subjects before your even exam leave started, correct? यस सर. This is what we recommend to a lot of students, but लोग मानते नहीं है कि एग्जाम लीव के पहले 4 सब्जेक्ट खत्म करो, so that by the time you come to the exam leave, you are fully prepared and you can do revision. So कितने revision किया आपने? Sir, I did almost 4 to 5 revisions for each subject except हम्म. IBS. For IBS, I did solve the case studies. ओके, ओके. आपने अपना खुद का इंडेक्स विंडेक्स बनाया IDBIBS के लिए, एक सूटकेस लेके गए एग्जाम हॉल, सब लाइक ऑल अदर स्टूडेंट? Yes, sir. IBS का तो I made my self indexes only. ओके, ओके, ओके. आपने कुछ ग्रुप ऑफ स्टडीज नहीं किया? नहीं सर, I was in connection with my few friends, but I like कि मैं खुद का अपना स्टडी प्लान रखूं because I want it to be a flexible plan. तो मेरा ऐसा होता है कि जब मेरे को लगता है कि मैं सब्जेक्ट से बोर हो रहा हूँ, तो I shift that subject. Okay, very interesting. Now, did you make a plan and completely stick to it, or what was the level of flexibility? मतलब fully flexible, जिस दिन जो मना है वो करोगे, या फिर एक 10 दिन के लिए जो मना है वो करोगे? What was your approach? तो सर मेरा ब्रॉड अप्रोच ऐसा था कि मैंने माइक्रो मैनेज नहीं किया कि डेली का इतना टारगेट होगा
और या फिर मेरे को इतने दिन में ये कंप्लीट करना है। आई वांट टू बी कि मेरे को 100% कंसेप्चुअल चलना है पहले, बिकॉज द ट्रेंड इज चेंजिंग। आईसीआई अब थोड़ा सा कंसेप्चुअली क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादा बनाने लग गया है। तो मैंने क्या किया था, फॉर एग्जांपल जो थ्योरी है ऑडिट के लिए, तो मैंने उसके लिए सेपरेटली कोई अपने डेडिकेटेड डेज नहीं निकाले। आई स्टार्टेड कि इन नवंबर 2025 अराउंड, कि मैंने ऑडिट का डेली 2 to 3 आवर्स एलोकेट किए एंड वन मेन सब्जेक्ट चलाया। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मेरी ट्रेनिंग्स वगैरह थी वो सितंबर एंड तक खत्म हो गई थी, दी एमसीएस एंड एडवांस आईटीटी। देन आई करेक्ट, स्टार्टेड विद हाँ। देन आई स्टार्टेड विद द एफआर रिवीजन। तो मैंने एफआर को अराउंड हम्म, 15 to 20 डेज एलोकेट किए थे। मेरा मोटिव ये था कि आई डोंट वांट कि मैं टाइम रिस्ट्रिक्शन की वजह से कुछ टॉपिक अच्छे से कवर नहीं कर रहा। तो मेरा हम्म, प्लान वो फ्लेक्सिबल था, मेरे पास ब्रॉड प्लान रेडी था कि आई वांट टू गिव मॉक्स इन अप्रैल 2026। देन आई डिड द रिवर्स प्लानिंग कि मेरे को कब क्या क्या कंप्लीट करना है। तो आप कितने मार्क्स दिए ओवरऑल? सर मैंने ओवरऑल मार्क्स 4 to 5 दिए होंगे, एक्सेप्ट आईबीएस। आईबीएस का मैंने एक ही मॉक लिखा था, बट बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैंने 4 to 5 दिए हैं। और उसमें से भी ऐसा था कि कुछ मॉक्स ऐसे हैं जो कि मैंने विदाउट रिवाइजिंग दिए थे। Acha. So when you give these mocks, are these past question papers and things like that, or you took some mock test series and all that, or ICA mocks? सर मैंने मोस्टली जो मार्केट में एक्चुअली जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह है उनके टेलीग्राम पे सब कुछ मिल जाता है, तो मैंने Mm. उनके मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व किए थे। बट जो मैंने एक पेड लिया था, बाकी सब मैंने खुद का सेल्फ इवेल्युएशन किया था। Acha. Okay. But how many years question papers did you go back, or RTPs did you go back to? सर मैंने मई 18 का कट ऑफ लिया था फॉर ऑल अच्छा, सब्जेक्ट्स। so new basically new syllabus से चालू किया आपने, and that is what you did. ठीक है, very interesting. So एक और question यार, you did all 3 years of article, 2 years of articleship with KPMG. यस सर। हाँ, तो इतना हेक्टिक होता होगा ना बिग फोर में आर्टिकलशिप, एंड देन कम बैक एंड स्टडी, एंड इट मस्ट हैव बीन जेन्युइनली डिफिकल्ट फॉर मैनेजिंग ऑल ऑफ मोर देन वन थिंग एट अ टाइम. Exactly, sir. Actually, in April to 2024, in May 2024, I was in Mumbai for around one or 2 months. तो ऐसा है कि स्टडीज के लिए तो बहुत टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट आई हैड गुड टीम। तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मेरे को आर्टिकलशिप में भी। बट कभी कभी थोड़ी टीम्स भी ऐसे मिली जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम था कि रात को भी 2 या 3 बज रहे हैं। बट ओवरऑल माई मैनेजर वॉज गुड। Okay, and what is your this thing? Which team were you in? You are in assurance or taxation, or which team were you in? आई वॉज इन अश्योरेंस। Assurance. Okay. So limited company audit, आई डिड या ऑल द स्टैट listed. ऑडिट्स, टैक्स ऑडिट्स एंड ग्रुप रिपोर्टिंग्स एक्सेट्रा। अच्छा, so listed companies or a more variety of companies? Variety of companies across the industries. Okay, very good, very good, very nice, very nice. तो दिस इज वन क्वेश्चन है आज। तो काफी लोगों का ये चलता है कि दिन के 15 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, 25 घंटे पढ़ो, 23 घंटे पढ़ो, तो आपका क्या है उसमें? तो हाउ मेनी सर आवर्स डिड यू? आई ट्राइड टू बी कंसिस्टेंट। तो मैंने क्या किया था कि अराउंड डेली के 10 आवर्स तो एट मिनिमम थे मेरे। तो बट उसमें से अगर हम इफेक्टिव आवर्स देखें तो इट वाज अराउंड 8 to 9। मेरा ऐसा था कि कम पढ़ो, बट इट शुड बी इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। एंड मैक्स कितना था? कभी एक आध दिन तो ज्यादा हो गया होगा ना? सर कभी कभी तो जैसे बिफोर माई एग्जाम्स इन अप्रैल आई वॉज क्लिकिंग अराउंड 13 to 14 आवर्स। बट कभी कभी स्टडी लिस्ट में 5 to 6 आवर्स रहता था, तो ऑन ऑन एन एवरेज इट वॉज अराउंड 10 आवर्स। 10 आवर्स, ठीक है, दैट इज गुड। एंड यूज टू 6 घंटे सोते हो, 8 घंटे सोते हो? सर आई एम लाइक अ पर्सन कि मेरे को नींद तो पूरी चाहिए, तो मैं तो 8-9 घंटे आराम से खुल के सोता था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। दैट इज द सो मैंने बहुत रैंकर्स को मिला ना, क्वाइट अ फ्यू पीपल वी हैव इंटरव्यूड, क्वाइट अ फ्यू ऑफ आवर स्टूडेंट्स, एंड आई एम आल्सो सीए, राइट? सो बचपन से देख रहा हूँ। Yeah. सो क्वाइट अ फ्यू गाइस एक्चुअली स्लीप वेल, एंड यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन? Actually, I was a night person in study मतलब leaves, but before the exams in April 2026, I shifted my routine to morning. ओके, ठीक है। बिकॉज क्वाइट अ फ्यू रैंकर्स दे स्लीप प्रॉपर्ली, ढंग से सोते हैं 8-9 घंटे, फुल्ली फ्रेश, एनर्जाइज्ड, एंड देन दे स्टडी। दैट एक्चुअली इज द राइट वे, द राइट अप्रोच व्हिच यू आल्सो अगेन वेरीफाइड. Then aap, how did you spend time? Matlab, are you a social media, constantly on social media, or are you, how do you spend time other than, okay, how to distract your mind, and how do you, take your mind off the studies? क्या करते थे आप?
तो सर जो सोशल मीडिया वगैरह है, आई वाज नॉट एट ऑल ऑन सोशल मीडिया इन माय सीए इंटरमीडिएट्स। तो आफ्टर Hmm. क्लियरिंग माय सीए इंटरमीडिएट्स, तो आई आल्सो हैड सम ड्रीम्स कि थोड़ा सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होते हैं। तो इन आर्टिकलशिप आई वाज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। तो आउटस्टेशन ऑर्डर्स वगैरह Instagram. होते थे, या ऑन Insta. इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, अक्रॉस ट्विटर वगैरह पे मैं थोड़ा एक्टिव था। बट Hmm. सिंस माय एग्जाम वाज इन May 26, माय गोल वाज क्लियर कि मेरे को ऑल इंडिया रैंक 1 पे Hmm. जाना है। तो Hmm. in May 2025, I deactivated all my social media accounts. वेरी वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी दोबारा रिएक्टिवेट किए नहीं किए? हाँ जी सर, अभी मैंने एग्जाम्स के बाद फिर से रीएक्टिवेट कर दिए थे। बढ़िया है, वेरी गुड वेरी गुड। तो एक्चुअली दिस इज वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्पेशली फॉर द लास्ट 2 3 अटेम्प्ट्स. How did you use technology? When I say technology, did you use AI? See, everybody goes through YouTube videos. Okay, YouTube को side में रखो. Did you use AI for any preparation? Because notebook LLM has certain things. You know, ChatGPT generates questions, or you know, Claude generate questions. आपने कुछ use किया था या फिर you were not focused on all of those? Sir, initially I started with some AI tools like ChatGPT or Claude for my Hmm. studies, but I feel कि they are not at all reliable. वो जैसे Correct. हम आंसर बोलते हैं, दे चेंजेस देयर आंसर अकॉर्डिंगली। तो Right. मैंने देखा कि नो, इट्स नॉट एट ऑल रिलायबल, एंड आईसीआई वांट्स टू बी अ वेरी पर्टिकुलर। तो मैंने अपना एआई वगैरह को बाद में बंद कर दिया था, और आई Hmm. फोकस्ड ऑन यूट्यूब्स और लाइक आईसीआई मटेरियल्स ओनली। Okay, ठीक है. So now, just slightly going back, slightly more personal. I wanted to ask you, why did you choose to do CA? I mean, मतलब 10th के बाद काफी लोग decide करते हैं साइंस लेना है, मैं कॉमर्स लेना है. So what was your thought process behind choosing commerce stream and then obviously उसके बाद CA? So, sir, after 10th, I scored around 93%, and like all, I had option like I can go into science or commerce. तो since my marks were decent, तो everyone suggested कि तुम्हें साइंस में जाना चाहिए। But Hmm. on a personal note, मेरे को साइंस में पता नहीं क्यों जमता नहीं था, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था साइंस में क्या चल रहा है। तो मेरा कमर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो आई वेंट विद दी कमर्स स्ट्रीम। तो 12th तक मैंने कमर्स में किया, और उसके बाद आई हैड ड्रीम टू गो इनटू एसआरसीसी। तो मैंने Hmm. जब तब तक एग्जाम स्टार्ट हो गया था सीयूईटी करके, फॉर Hmm. टॉप कॉलेजेस। तो वो Hmm. मेरा एक्चुअली क्लियर नहीं हुआ था एसआरसीसी में, तो मेरा वहाँ पे Hmm. ब्रेकडाउन बहुत बुरी तरह हुआ था। इवन माय स्कूल Oh. टीचर्स वर लाइक कि मेरा तो हो ही जाएगा। तो आई Hmm. स्कोर्ड अराउंड 93% इन क्लास 12th। सो आई डिड फाइल रिवैल्यूएशन फॉर क्लास 12th, एंड माय मार्क्स वर इंक्रीज बाय 4%। Hmm. तो दैट्स वाई Okay. तब मेरे को लगा कि सीए में आना बेटर रहेगा। तो मैंने Hmm. रेगुलर कॉलेज को फिर छोड़ के सीए में आ गया था तब। Very good. So you did not join a regular college at all, BCom का you didn't join. No, sir. I completed my graduation from IGNOU University. Very good, very good. Okay, interesting. So, आपके family में there's anyone who's a CA or anyone who inspired you to become a CA? Yeah, so sir, my elder sister is also a chartered accountant. So Very, she inspired me to be a chartered accountant. very good, very good. So, वो social media पे we I didn't complete the question. So, आप कुछ और क्या करते थे to de-stress yourself other than social media? तो सर कभी कभी ना ज़्यादा पढ़ के तो इट्स लाइक कि बर्नआउट ज़्यादा हो रहा था। तो आई यूज टू Hmm. सिट विद माई पेरेंट्स एंड स्पेंड टाइम विद देम। और आई विल गो सम ऑन वॉकिंग और साइकिलिंग, सो दैट जो फ्रेश एयर वगैरह है, Hmm. तो उस पर Hmm. ज़्यादा फोकस रहे, इंस्टेड कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ और मैं फ्रेंड्स के साथ इतना कनेक्ट नहीं करता था। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई टाइम विद माई सेल्फ। Okay, but music फिर या फिर exercise या फिर meditation, any of those? No. नो, आई वाज रियली इनटू म्यूजिक। आई लव म्यूजिक। तो मेरा ऐसा था कि डेली का तो म्यूजिक था, तो पक्का था कि 1 or 2 hours आई एम like if I'm solving some practical questions, I play music in the background. So Oh, like is that. it? Yes. Oh, very interesting. So there are two people, huh? People who can study with music. There are people who cannot study with music. So I can't study with music. I need absolute silence. But very interesting to know that you can actually study with music in background. Very interesting. Very Yes, interesting. sir. Like I also have one thing that जब एग्जाम से पहले, जब like our exam इज ऑन 2 2 p.m, तो ऐसा होता था Mm, कि 12 बजे तक मैं पढ़ता था। 12 बजे के बाद मैं कुछ भी बुक्स वगैरह नहीं उठाता था। तो आई mm. आई यूज टू लिसन टू वन म्यूजिक, लाइक जो होता है ना कि भाग मिल्खा भाग का, बस तू भाग Ah, मिल्खा। तो very. दैट्स व्हाट आई लिसन।
बढ़िया है, बहुत बढ़िया बॉस, बहुत ही बढ़िया. So before we, now I'm coming to the last section, but before we go there, just wanted to ask. So you've taken classes from us from OneFin for AFM. So on an overall basis, how did you find the classes? Were they helpful? If helpful, how did they help you? तो सर ऐसा है कि आई एम फ्रॉम नॉर्थ, तो आई हैड ऑल माई स्कूलिंग इन इंग्लिश मीडियम, बट आई लाइक लर्निंग इन हिंदी. सो दैट वाज वन थिंग कि मैंने आई ट्राई समथिंग न्यू, कि मैंने इस बार इस एफ एम की क्लासेस टोटली इंग्लिश में लिया था. तो पहले मेरे को लगा कि इट विल बी अ डिफिकल्ट वन, बट मेरे को थोड़ा डिसेंट था वो. तो आई स्टार्टेड विद लाइक फर्स्ट सब्जेक्ट वाज माय एफ एम ओनली. तो Mm, ओवरऑल क्लासेस वर डिसेंट, द एनालिसिस एंड द ऑल द नॉलेज यू गिव टू स्टूडेंट्स, like all the mm, chart techniques or the excel parts, it is good. mm. Overall classes content was good. Okay, okay. And because I keep adding content fresh also. So after every exam attempt, I add new questions like that. So how what was your focus after Jan? Matlab, yeah, ICA is asking very weird questions. So did you expect a question paper like this? No, right? सर ऐसा था कि जैन 26 से पहले भी आई वाज रेफरिंग टू 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी. तो मेरे को इतना Mm, दिक्कत नहीं आया. जैन 26 का पेपर भी इन मार्केट इट वाज लाइक कि थोड़ा पेपर हार्ड आया, बट फॉर मी इट वाज डिसेंट बिकॉज मैंने 100% कवर किया था और मैं कंसेप्चुअली okay. ट्राई कर रहा था. तो इतना दिक्कत नहीं आया. बट Mm, मे 26 वाज ऑन नेक्स्ट लेवल. उसमें तो ऐसा था कि जो कंसेप्ट हमें पढ़े भी नहीं है उसमें से भी क्वेश्चन थे. तो correct. ऐसा था कि अगर इफ वी हैव डन 100%, इफ आई कैन ऑल्सो शो कि जो एग्जाम में 26 में पेपर आया उसमें भी 40-50 मार्क्स का वो डिसेंट, कि हम उसमें से स्कोर कर सकते हैं. Mm, okay. So, what is one unique thing you remember in my class or you liked and the way I've taught? Because quite a few topics we've taught, right? Anything that you remember because you finished the preparation in November 23. Uske baad again, did you go through the class after that? नहीं सर, आफ्टर दैट आई प्रेप्टेड ऑन सेल्फ मोस्टली या. Acha. So 3 साल पहले, what is it? One topic or one chapter or something which you felt, ah, yeah, this is good or this is explained well or something which you liked. सर जो मोस्टली मेरे को एक कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा था स्टैटिस्टिक्स का, जो वो था वैल्यू एट रिस्क का. आपने वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का बड़ा अच्छे से समझाया था. तो ऐसा है Correct. कि स्टॉक मार्केट्स में वो बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है. तो वो मेरे को जब Mm. क्लासेस का वो आई गेस वो इनिशियल चैप्टर्स में आता है. तो वो Correct. मेरे को चीज़ Correct. बड़ी अच्छी लगी. तो आज भी मेरे को ग्राफ वगैरह याद है, आपने एक्सेल वगैरह पे बना के दिखाया था कि ऐसे Correct. ऐसे नॉर्मल नॉर्मल Correct. डिस्ट्रीब्यूशन है. तो Correct. या. Very good, very good. Okay, great, great. So finally, the last section. So if you have to give an advice to budding CA students, जो भी अभी CA पढ़ रहे हैं, whether foundation, inter final doesn't matter. अगर if you have to give a very short, 3 line, 5 line advice on how to study for exams, how to prepare for the exams, and what would your advice be? Sir, my advice would be honest to yourself. If you want to score good, or if you want to be a chartered accountant, or your dream is to score all India rank one, तो आपको ऐसा है कि उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा. सी, एवरीवन इज डूइंग Mm, हार्ड वर्क, बट इट्स गुड टू mm, डू हार्ड वर्क इन अ राइट डायरेक्शन. तो ऐसा है कि आपको mm, अपना प्लानिंग वगैरह खुद से करना पड़ेगा. इट्स लाइक कि आप हेल्प ले सकते हो रिसोर्सेज का, बट mm, आप खुद से ज़्यादा अपने आप को आपको कोई नहीं जानता. तो प्ले ऑन योर mm, स्ट्रेंथ्स. जैसे मेरा एएफएम के पेपर में थ्योरी स्ट्रेंथ था, तो डिस्क्रिप्टिव का थ्योरी है वो मैंने बड़ा अच्छे से लिखा, चार्ट्स वगैरह बनाए, उसके दो दो पेज के आंसर लिखे, सो दैट कि अगर ग्रेस मार्क्स वगैरह भी मिल रहा है, बिकॉज पेपर वॉज डिफिकल्ट, mm, कि मोस्टली तो ग्रेस मार्क्स मिलेगा. तो ऐसा है कि आपका mm, अपना 100% दो. बाकी mm. रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, बट प्रोसेस को हम सही कर सकते हैं. तो गॉड विल सी आवर रिजल्ट. Okay. Uh, then one or two must do's. मतलब ये चीज करो, ये चीज मत करो. Okay, must do, must don't do. What would you suggest for students? Two things only, not too many. दो चीज 100% करना है, ये दो चीज 100% करना ही नहीं है in your CA preparation. सर फर्स्ट ये है कि आपको आईसीएम मटेरियल को करना पड़ेगा, बिकॉज Mm, आईसीएम मटेरियल इज मस्ट अक्रॉस ऑल द mm, सब्जेक्ट्स. पहले हम mm, इतना उसको वो नहीं करते हैं, बट आईसीएम मटेरियल इज मस्ट. सेकंड, ऐसे आपको mm, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आप सोशल mm. मीडिया पे भी एक्टिव हो, आपको सब कुछ चाहिए. अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे. तो ये तो Correct. मस्ट ही है. तो क्या Mm, नहीं करना चाहिए? फर्स्ट, सोशल मीडिया आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा. सी, mm, मेरे को ऐसा है कि आई आई लव म्यूजिक, बट ऐसा नहीं है कि mm, मैं उस पर ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ. तो mm, सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हो तो ठीक है, आपका अराउंड 10 to 15 मिनट्स का रहना चाहिए एट mm, मैक्सिमम. बट mm, आपको स्टडीज पे काम करना पड़ेगा. mm, सेकंड ये है कि
मेक चॉइसेस, आपको कहीं ना कहीं चॉइस करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो जो कि हम 100% कवर नहीं कर पाते, बिकॉज कभी कभी हमारी लिमिटेशन हो जाती है कि नहीं समझ आ पा रहा है, हम कितना मर्जी ट्राई कर लो, कितना मर्जी वो कर लो। तो आपको ऐसा कोई चैप्टर बिल्कुल नहीं छोड़ना, उसको एटलीस्ट एक ओवरव्यू वगैरह ले लो। बाय चांस अगर उस चैप्टर में से इजी क्वेश्चन आ गया और जो चैप्टर आपको अच्छे से आता है और उसमें से डिफिकल्ट आ गया, तो एटलीस्ट यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ओके, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो व्हाट आर योर नेक्स्ट प्लान्स? आई मीन, अभी सीए बन गए हो तो अभी अगला व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? आई मीन, यू विल टेक पार्ट इन कैंपस इंटरव्यूज या फिर कुछ और पढ़ने का प्लान है? क्या है आपका प्लान? तो सर आई हैव नॉट टेकन द फाइनल कॉल येट, बट जो मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है, आई वांट टू डू समथिंग बाय माई ओन। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फ्रीडम इन लाइफ। तो हम्म, मेरा ऐसा है कि लॉन्ग टर्म में मैं खुद को कुछ करना चाहता हूँ, बट आई वांट कि मैं डायरेक्टली ऐसा कोई प्रोफेशन वगैरह ना चुन लूँ जिससे मैं पूरी उम्र पछताऊँ। तो दैट्स हम्म, तो आई थिंक अभी फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years आई विल बी गेटिंग इनटू जॉब फॉर एक्सपीरियंस, बट हम्म। साइड बाय साइड आई विल बी स्टार्टिंग समथिंग न्यू। तो कुछ और एमबीए, सीएफए, ये सब करने का कुछ प्लान है? सोचा है, सर नहीं अब सोचा? सर आई थिंक कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें हम पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस्ड हैं और प्रैक्टिकली थिंग्स पे हम बहुत कम है। तो आई वांट कि थोड़ा हम्म, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं। इफ़ आफ्टर 1 or 2 years हम्म, आई थिंक कि फर्दर कोर्स स्टार्ट करना चाहिए, मे बी आई कैन गेट इनटू सिविल सर्विसेज और एमबीए हम्म। एक्सेट्रा। देन आई विल असेस द सिचुएशन एंड टेक कॉल अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अभी तो डिसाइड नहीं किया? नो सर। But so now, what do you want to? What kind of a job are you looking? Are you looking for a job in financial services sector? Are you looking in a big four? Are you looking in HUL kind of places? What kind of job would you want to do right now? Abhi during campus. Sir, I am planning to get into private equity since, but I am not having prior experience in in finance sector. So Mm, most probably I will start some. I will go into maybe niche private equity or boutique firms mm, or in consultancy, and after that I mm. will shift some my focus into private equities, because I have a huge interest in stock markets or like finance. Very good, very good, excellent. That's a great choice. That's a great career choice. ठीक है, great man. Thanks a lot. That was wonderful chatting with you, and thanks a lot for sparing your time. In busy, you're busy with all your political meetings and political schedule के बीच में हमें time दिया है. अरे Just नहीं pulling सर। your leg, no offense. या नहीं, नहीं. So it is great. It is great. Wish you all the very best, and have a great career ahead. ठीक है? थैंक यू सो मच सर। Thanks, man. Thanks.